गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं झारखंड सिविल कोड एग्ज़ाम जो 21/9/2025 को हुआ था असिस्टेंट क्लर्क का, उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ग्रुप है जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब? ए मेक, बी रन, सी ग्रैब, डी कैरोट। तो इसका सही उत्तर होगा कैरोट। कैरोट बेसिकली नाउन है और मेक, रन एंड ग्रैब आर ऑल एक्शन वर्ड्स मेकिंग देम वर्ब्स कैनॉट। कैरोट इज ए नाउन। सो मेक, रन और ग्रैब आपका वर्ब है और कैरोट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशंस? ए कैन, बी बिहाइंड, सी वाटर, डी गोल्ड। तो इसका सही उत्तर है बिहाइंड। Behind indicates positions or location related to something else, which is the function of a preposition. Can, water, and gold are modal verbs, a noun and a noun respectively. Question number 3. Which of the following is an adjective? Call, shirt, blue, box. तो इसका सही उत्तर है blue. Blue describes a quality or characteristic color, making an adjective. Question number 4. Which the following is an adverb? Quickly, stand, short, smart. तो इसका सही उत्तर है quickly. Quickly describe how an action is performed, which is the role of an adverb. Him is a pronoun, short is an adjective, and tell is a verb. Question number 5. Which the following is not a pronoun? She, him, they, tell. तो इसका सही उत्तर है detail. She, him, and they are all pronouns standing in for nouns. Tell is a verb. Question number 6. Identify the sentence that has a prepositions. A, keep working hard. B, that the cat ran. C, she asked about the dog. D, we'll talk. तो इसका सही उत्तर है C, she asked about the dog. Explanation. The word about in the sentence is a prepositions indicating the topic of the inquiry. The other sentence do not contain prepositions. Question number 7. Identify the sentence that does not have an adjective. A, she had a red scarf. B, can we play for volleyball? C, the small dog barked. D, he had chocolate milk. तो इसका सही उत्तर है आंसर B, can we play for volleyball. Explanation. This sentence consists of a modal verb can, a pronoun we, a verb play, and a noun volleyball, but no words that describe noun, does no adjective. The other sentences contain adjective red in A and small in C and chocolate in D. Question number 8. ये आपका comprehension है, इसका मैं सिर्फ आंसर ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का comewithus.com sells TVs, telephones, internet connections, computer. तो इसका सही उत्तर है C, internet connections. Question number 9. According to the advertisement with comewithus.com, you can A, make new friends, B, travel abroad, C, appears on TV, D, buy cars only. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है make new friends. Question number 10. If you want to connect to the internet with comewithus.com, you have to A, send them a message, B, call them, C, take part in discussions, D, visit their office. तो इसका सही उत्तर है B, call them. Question number 11. It is more expensive to travel on Friday, so I will leave on Thursday evening. What is so in this sentence? Adverb, B, preposition, C, adjective, D, conjunction. तो इसका सही उत्तर है C, adjective. In this sentence, expensive describes the noun travel when used as a noun meaning the act of traveling or the implied noun. It is referring to the cost of travel. It modifies a noun or pronoun, thus functioning as an adjective. Question number 12. The body does not resemble either of its parents. What it resembles in this sentence? A verb, B, adjective, C, adverb, D, pronoun. तो इसका सही उत्तर है A, verb. Explanations. Resemble is a word that describes an action or state of being specifically to look like or be similar to someone or something. In the sentence, it shows what the body does, making it an action verb. Question number 13.
Which the following word is an example verb? A not, B taste, C late, D slowly. इसका आंसर है टेस्ट. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन occurrence or state of being among the given options. Taste can function as a verb. The compendium is a noun phrase. Slowly is a adverb describing how something is done, and the other opinion like th is a not common English word of verb. Question of 14. I was distressed to hear about his death. Identify the adjective. A verb, B adverb, C adjective, D noun. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडजेक्टिव. Question 15. The policeman is a friend of mine. Identify the noun here. A adjective, B pronoun, C verb, D noun. तो इसका सही उत्तर है सी verb. Question 16. Mr. Jain bought loaves of bread from the bakery. Select the correct option to complete the sentence. A few, a little, any, much. तो क्वेश्चन 16 का आंसर है a few. Question 17. The baker sprinkles icing sugar into the cake. Select the correct options to complete the sentence. A many, B a few, C a little, D several. तो इसका सही उत्तर है a little. Now, icing sugar is an uncountable noun and a little is used for a small quantity of uncountable noun. Question number 18. You have time left, so do your work carefully. Fill the right words from the options. A much, B several, C many, D plenty. तो इसका सही उत्तर है time. Time is an uncountable noun in this context, and much is used to quantify large amount of uncountable nouns when implying scarcity emphasis. Question 19. Father, coffee is bitter. Can you put sugar in it? Fill the right words from the options. A many, B some, C much, D plenty. तो इसका सही उत्तर है बी शम. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है. सम इज यूज्ड फॉर एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट फिट्स नेचुरली इन एन ऑफर और रिक्वेस्ट लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 20. Nivedita is very friendly and polite, so she has of customer. Fill the right words from the options. A lot, many, few, some. तो इसका सही उत्तर है बी many. इसका explanation इस पर है. Customers are countable nouns and many is used to indicate a large number of countable nouns. 21. Question number 21. Which is Janor Gandhi Thermal Power Station located? A Gujarat, B Assam, C Maharashtra, D मध्य प्रदेश. जानोर गांधार ताप विद्युत के कहाँ स्थित है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. तो इसका सही उत्तर है गुजरात. क्वेश्चन नंबर 22. Which is the least populated district in India? Census 2011. A Lawlang, Daman, C लाहौल स्पीति, डी दिवांग वैली. बाद सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है जनगणना 2001 के अनुसार? लोगलैंग, दमन, लाहौल स्पीति, डी दिवांग. तो इसका सही उत्तर है डी दिवांग वैली. क्वेश्चन नंबर 23. द शीव ट्रॉफी इज टूर्नामेंट इन विच स्पोर्ट? टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, बास्केटबॉल. शिव ट्रॉफी किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, बास्केटबॉल. तो इसका सही उत्तर है गोल्फ. Question number 24. Who drafted the Marquess of Queensberry rules for boxing? Jack Broughton, B. John L. Sullivan, C. Daniel Mendoza, D. John G. Chambers. मुक्केबाजी के लिए मार्क्स ऑफ क्वींसबेरी नियम का मसौदा किसने तैयार किया था? जैक ब्रॉटन, जॉन एल मुल्विन, सी. डैनियल मेंडोजा, जॉन वी चैम्बर्स. तो इसका सही उत्तर है जॉन जी चैम्बर्स. सी ऑप्शन है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 25.
Who was the first boxing heavyweight champions under Queensberry rules? A. John L. Sullivan, B. James J. Corbett, C. Charlie Mitchell, D. Jack Killeran. क्वींसबेरी रूल के तहत पहला बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियन कौन था? जॉन एल सलिवन, जेम्स जे कॉर्बेट, चार्ली मिचेल, जैक किलेन। तो इसका सही उत्तर है जेम्स जी कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 26, which boxer is famously nicknamed Big George? A. George Foreman, B. George Carpentier, C. George Jackson, D. George David. किस मुक्केबाज का उपनाम बिग जॉर्ज प्रसिद्ध है? A. George Foreman, B. George Carpentier, C. George Jackson, D. George David. तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज फॉरमैन। क्वेश्चन 25, बोकारो स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प फ्रॉम विच कंट्री? ए. रसिया, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. इंग्लैंड। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था? रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है रसिया। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्ट टाउन इन गुजरात? ओखा, राजकोट, वेरावेल, पोरबंदर। निम्नलिखित कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? ओखा, राजकोट, वेरावेल, पोरबंदर। तो इसका सही उत्तर है राजकोट। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? बैंगलोर, नॉर्थ 24 परगना, सी. मुंबई सब अर्बन, डी. थाने। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बैंगलोर, उत्तर 24 परगना, सी. मुंबई उपनगरीय, डी. थाने। तो इसका सही उत्तर है थाने। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द नेम ऑफ ONGC इंटरनेशनल डिवीजन? ए. ONGC इंटरनेशनल ORG, बी. ONGC विदेश लिमिटेड, सी. ONGC फॉरेन ऑफिस, डी. ONGC ओवरसीज लिमिटेड। ONGC के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग का नाम क्या है? ए. ONGC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बी. ONGC विदेश लिमिटेड, सी. ONGC फॉरेन ऑफिस, डी. ONGC ओवरसीज लिमिटेड। तो इसका सही होता है ONG विदेश लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 31, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द UPSC? ए. प्रेसिडेंट, बी. प्राइम मिनिस्टर, सी. पार्लियामेंट, डी. कैबिनेट। UPSC के अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. मंत्रिमंडल। तो इसका सही होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ UPSC मेंबर्स टू होल्ड ऑफिस? ए. 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स। UPSC सदस्यों के लिए पद धारण के लिए अधिकतम आयु क्या है? 60 साल, 62 साल, 65 साल, 70 साल। तो इसका सही उत्तर है 65 साल। क्वेश्चन नंबर 33, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ए. प्रेसिडेंट, बी. मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सी. बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, डी. प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा के सदस्य, सी. संसद के दोनों सदन, डी. प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है मेंबर्स ऑफ लोकसभा यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशंस IDX 24 was recently inaugurated in which city? न्यू दिल्ली, बी. चेन्नई, सी. वाराणसी, डी. जोधपुर। हाल में किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शन IDX 24 का उद्घाटन किया गया? ए. नई दिल्ली, बी. चेन्नई, सी. वाराणसी, बी. डी. जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द VL शार्सम मिसाइल एट विच लोकेशन? चेन्नई, चांदीपुर, पोखरण, विशाखापट्टनम। बात हाल में किस स्थान पर VL शार्सम मिसाइल का परीक्षण किया? चेन्नई, चांदीपुर, पोखरण, विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर है चांदीपुर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज आक्या 2024? NDMA, नीति आयोग, DRDO, इसरो। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास आइकिया 2024 आयोजित किया? NDMA, नीति आयोग, DRDO, इसरो। तो इसका सही उत्तर है NDMA। क्वेश्चन नंबर 37, विच आर इंक्लूडेड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज? द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमेटी, म्युनिसिपल कमिश्नर, ऑल द अबव। नगर निगम प्राधिकरण में कौन सा शामिल है? परिषद, स्थायी समितियां, नगर आयुक्त, डी. उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी. ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल पर्पस ऑफ एजेंसीज? सीवरेज बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सी. टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डी. ऑल ऑफ देम।
निम्न कौन सा विशेष प्रयोजन एजेंसियां हैं? सीवरेज बोर्ड, सी बिजली बोर्ड, डी नगर सुधार ट्रस्ट, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनियन टेरिटरीज? ए फेडरल स्ट्रक्चर, हैव फुल ऑटोनॉमी, सी हेडेड बाय गवर्नर्स, डी नन ऑफ द अबव। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ए संघीय संरचना, बी पूर्ण स्वायत्ता, सी राज्यपालों के नेतृत्व में, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड? ए 2000, बी 2005, सी 2010, डी 2015। राज्य सूचना आयोग गठन कब हुआ? 2000, 2005, 2010, 2015। तो इसका सही उत्तर है 2005, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, what do we call non-green heterotrophic organism once considered part of the plant kingdom? A bacteria, fungi, archaea, Escherichia coli। नॉन ग्रीन परपोषी जीवों क्या कहते हैं जिन्हें कई पादप जगत का हिस्सा माना जाता था? जीवाणु, कवक, आर्किया, एस्चेरिया कोलाई। तो इसका सही उत्तर है फंजाई। क्वेश्चन 42, which part of the ovule located opposite the microflora end represent the basal part? Helium, nucleus, chalza, फंसाइल। बीजांड का कौन सा अंग बीजांड द्वारी सिरे के विपरीत भी स्थित होता है, जो इसके आधारी भाग को दर्शाता है? हिलम, न्यूक्लियस, चालेजा, फ्यूनिकल। तो इसका सही उत्तर है चालजा। क्वेश्चन 43, आफ्टर swallowing grass quickly, where do cattle initially store it? Rumen, esophagus, small intestine, salivary gland। घास को जल्दी से निगलने के बाद मवेशी से उसको सबसे पहले कहाँ संग्रहित करते हैं? रूमेन, ग्रास नाली, छोटी आंत, लार ग्रंथियाँ। तो इसका सही उत्तर है रूमेन। क्वेश्चन 44, द स्लोगन इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट? ए चिपको मूवमेंट, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी एपिको मूवमेंट, डी नन ऑफ दैम। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा निम्नलिखित में किस पर्यावरण आंदोलन में संबंधित है? ए चिपको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी एपिको आंदोलन, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चिपको। क्वेश्चन 45, विच इज द सिग्निफिकेंस फेवरेट टू इन द कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेंस? ए अर्थ डे, बी वर्ल्ड ओशियन डे, डी वर्ल्ड वाटर डे, डी वर्ल्ड वेटलैंड डे। पर्यावरणीय अनुष्ठानों के संदर्भ में 2 फरवरी क्या महत्व है? पृथ्वी दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्वेश्चन 46, द हेलमंड प्रोविंस इन अफगानिस्तान इज ग्लोबली नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? टोबैको, ओपियम, वीट, कॉटन। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत विश्व स्तर में किस फसल की खेतों के लिए जाना जाता है? तंबाकू, अफीम, गेहूं, कपास। तो इसका सही उत्तर है ओपियम यानी अफीम। क्वेश्चन 47, द एयर टू सरफेस मिसाइल इज डेलिया तो 305 was developed by which country? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रशिया। हवा सतह मार करने वाली मिसाइल इजडेलिया 305 किस देश द्वारा विकसित की गई है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, रूस। तो इसका सही उत्तर है रशिया। क्वेश्चन 48, which of the following ecosystem exhibit the highest biodiversity? Mangroves, deserts, coral reef, alpine meadows। नहीं कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? मैंग्रोव, रेगिस्तान, पलवितियाँ, अल्पाइन घास के मैदान। तो इसका सही उत्तर है कोरल रीफ्स। क्वेश्चन 49, which of the following factors primarily regulates breathing in humans? A, the number of red blood cells, B, the amount of hemoglobin in the blood, C, inherent genetic control, D, CO2 level and pH sensor। नहीं कौन सा मुख्य कारक मुख्य रूप से मनुष्यों में श्वसन को नियंत्रित करता है? लाट रक्तकण कोशिका की संख्या, रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा, सी अंतर्निहित आनुवंशिक नियंत्रण, डी CO2 स्तर और pH सेंसर। तो इसका सही उत्तर है डी CO2 लेवल एंड pH सेंसर। 50, which is the term for reproduction where only one parent passes genes to the offspring? Apomixis, एपिमिक्सिस, सुडोगैमी, पैरेंथोकार्पी। उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिस केवल एक ही जनक की संतानों का जीन हस्तांतरित होता है? एपोमिक्सिस,
एपोमिक्सिस स्यूडोगामी प्रथनोकार पे। तो इसका सही उत्तर है एपोमिक्सिस। क्वेश्चन 51, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज टू 3, 15 and 27 will be 27/5, 135, 5/3, 2/5। 3, 15 और 27 का चतुर्नाग क्या होगा? 27/5 135, 5/3 215। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 135। क्वेश्चन 52, in a mixture of 60 liters the ratio of milk and water is 7:3 and another 10 liter of water is added to the mixture, then the ratio of milk and water in the resulting mixture is 3:2, 6:1, 2:1, D5:1। ये 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात है 3:2, 6:1, 2:1, 5:1। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है 3:2, ऑप्शन ए। 53, the sides of triangle in the ratio 1/3, 1/4 and 1/8 if the perimeter is 150 cm, find the length of the smaller side, A 22 cm, B 32 cm, C 27 cm, D 35 cm। ये त्रिभुज की बजाय 1/3, 1/4 और 1/8 के अनुपात में है। यदि परिमाप 153 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 22 सेंटीमीटर, बी 32 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर, डी 35 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 54, बनाना इज रिलेटेड टू फ्रूट, क्रिसैंथेमम इज रिलेटेड टू फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। केला फल संबंधित है, गुलदाउदी किससे संबंधित है? फल, तना, जड़, फूल। तो इसका सही है उत्तर है फ्लावर। क्वेश्चन 55, हॉस्पिटल रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, स्कूल रिलेटेड टू एजुकेशन, स्टूडेंट, टीचर, बुक्स। अस्पताल उपचार संबंधित है, स्कूल से संबंधित है, शिक्षा, छात्र, शिक्षक, पुस्तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन है एजुकेशन। क्वेश्चन 56, ए मिसाइल ट्रेवल स्पीड ऑफ 1260 km/h, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 सेकेंड इन मीटर्स? 322, 369, 350, 384। एक मिसाइल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 322, 369, 350, 384। तो इसका सही उत्तर है 350। क्वेश्चन 57, व्हाट इज सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 125:2016? ए 5:11, बी 9:8, सी 5:6, डी 16:7। 125:216 का उप त्रिगुणित अनुपात क्या है? 5:11, 9:8, सी 5:6, डी 16:7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5:6। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द रेशियो वाटर टू मिल्क इफ ए मिल्कमैन एडेड 10 लीटर वाटर टू 30 लीटर मिल्क? 1:3, 2:3, 4:2, 5:6। एक दूध वाले ने 30 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है? 1:3, बी 2:3, सी 4:2, डी 5:6। तो इसका सही उत्तर है 1:3। 59, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अब्दुल एंड रहमान इज 5:4, द सम ऑफ देयर एजेस इज 72 years, व्हाट आर देयर एजेस? ए अब्दुल इज 36 एंड रहमान इज 36, बी अब्दुल इज 54, रहमान इज 18, सी अब्दुल इज 40 एंड रहमान इज 32, डी अब्दुल इज 27 और रहमान इज 45। अब्दुल रहमान के आयु का अनुपात 5:4 है, उनके आयु का आयोग 72 वर्ष है, तो उनके आयु क्या है? ए अब्दुल 36 वर्ष का है और रहमान 36 वर्ष का, बी अब्दुल 54 वर्ष का है और रहमान 18 वर्ष का, सी अब्दुल 40 वर्ष का है और रहमान 32 वर्ष का, डी अब्दुल 27 वर्ष का, रहमान 45 वर्ष का। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल इज 40 एंड रहमान इज 32। क्वेश्चन 60, if 8:x equal to 22.4 ratio 89.6, then find the value of x. A 28, B 36, C 24, D 32। यदि 8:x equal to
22.4 रेशियो 18.6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए 28, बी 36, सी 24, डी 32। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 32। 61. U and V invested 18400 and 22400 respectively. If use profit share is 20700, what is their total combined profit? A 43,200, B 45,900, C 52,300, D 56,400। U और V क्रमशः 18400 और 22400 रुपये का निवेश किया। यदि यू का लाभ का हिस्सा 20700 है तो उसका कुल संयुक्त लाभ क्या होगा? ए 43,200, बी 45,900, सी 52,300, डी 56,400। तो इसका सही उत्तर है 45,900। क्वेश्चन नंबर 62। ए शॉपकीपर सेल्स almond at 1250 per kg and faces a 7% loss. He sells them instead of 1375 per kg. What would be his percentage gain or loss? A 4.6% gain, B 2.3% loss, C 2.3% gain, D 4.6% loss। ये दुकानदार बादाम 1250 रुपये प्रति किलो से दर से बेचता है, 7% की हानि होती है। यदि वो उन्हें 675 रुपये प्रति किलो दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये 4.6% लाभ, 2.3% हानि, 2.3% लाभ, 4.6% हानि। तो इसका सही उत्तर है 2.3% गेन। क्वेश्चन नंबर 63। An item is sold at 25% discount. Additionally, a promo code gives 8% cashback. What is the effective discount percentage? A 31%, B 35%, C 35.75%, D 12.5%। ये वस्तु 25% की छूट पर बेची जा रही है, उसके अतिरिक्त एक प्रोमो कोड 8% कैशबैक देता है। प्रभावी छूट का प्रतिशत क्या है? 31%, बी 35%, सी 35.75%, डी 12.5%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 31%। Question 64. The mean proportion of two numbers x and y is 16 and their third proportion is 128. What are the values of x and y? A 8 and 16, B 16 32, C 16 and 16, D 8 and 32। दो संख्या x y का माध्य अनुपात 16 है और उनके तीव्रता अनुपात 128 है, तो x y का मान क्या होगा? 8 और 16, 16 और 32, 16 और 16, 8 और 32। तो इसका सही उत्तर है 8 और 32। क्वेश्चन नंबर 65। In the first 32 overs of a match, the run rate was 7.2 runs per hour. What must be the required run rate for the remaining 18 overs to reach a total of 297 runs? A 4.3, B 4.9, C 3.7, D 3.1। एक मैच के पहले 32 ओवर में रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर था। शेष 18 ओवर में कुल 297 रन बनाने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होना चाहिए? 4.3, 4.9, 3.7, 3.1। तो इसका सही उत्तर है 3.7। क्वेश्चन नंबर 66। If the length and breadth of a rectangle are increased by 40%, 70% respectively, what is the percentage increase in area? 118, 110, 128, 138। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40%, 70% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 118, 110, 128, 138। तो इसका सही उत्तर है 138। क्वेश्चन 67। What is the immediate right of P among the 5 person PQRS and T facing north statement? First, R is third to the left of Q and P is second to the right of R. Second, Q is the immediate left of T. What is second to the right of P? Who is second to the right of P? A, first alone is sufficient while two alone is not. B, second alone is sufficient while first alone is not. C, neither one nor two is sufficient. D, neither one or either two is sufficient। उत्तर दिशा के सम्मुख 5 व्यक्तियों PQRS-T में से P की ठीक दाईं ओर कौन है? कथन। फर्स्ट, R Q के बाएं तीसरे स्थान पर है और P R के दाएं दूसरे स्थान पर है। सेकेंड, Q T के ठीक बाएं ओर है और P के दाएं तीसरे स्थान पर है। A केवल एक पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है। B केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। C न तो 1 न तो 2 पर्याप्त है
डी या तो एक या तो दो पर्याप्त हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, 2 alone is sufficient while 1 alone is not. Question was state, on which date of the month was Anjali born in February 2004? Statement: A. Anjali was born on an even date. Second, Anjali's birth date was a prime number. A. First alone is sufficient. B. Second alone is sufficient. C. Both 1 and 2 are required. D. Either 1 or 2 is sufficient. फरवरी 2004 में अंजलि का जन्म महीने किस तारीख में हुआ था? कथन: अंजलि का जन्म सम संख्या वाली तारीख में हुआ था। सेकंड, अंजलि का जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या थी। एक केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, एक और दोनों आवश्यक है, या तो एक या दो पर्याप्त है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 69, हु अमंग पी क्यू आर एस टी इज टॉलेस्ट एस्टिमेट? फर्स्ट, पी ग्रेटर देन क्यू एंड एस बट smaller than R. Second, Q greater than T. C. A. 1 alone is sufficient. B. 2 alone is sufficient. C. Both required. D. Neither sufficient. PQRST में कौन सबसे लंबा कथन है? कथन फर्स्ट, P greater than Q और S लेकिन R से छोटा। सेकंड, Q greater than T, एक केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, दोनों आवश्यक, कोई पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी सी। क्वेश्चन 70, हाउ इज के रिलेटेड टू एन? स्टेटमेंट फर्स्ट, एन's mother is sister of K's father. Second, K is the only son of his parents. Option A, first alone is sufficient. B, second alone is sufficient. C, both required. D, neither sufficient. K N किस प्रकार संबंधित है? कथन फर्स्ट, N की माता K के पिता की बहन है। सेकंड, K अपनी माता पिता का इकलौता पुत्र है। C, केवल एक पर्याप्त है। B, केवल दो पर्याप्त है। C, दोनों आवश्यक है। D, कोई पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बोथ रिक्वायर्ड, यानी C। 71, in a strange naming code, erase is called pencil, pencil is called sharpener, sharpener is called bag. What does child write with? Box, pencil, sharpener, bag. एक अजीब नामकरण कोड में इरेजर को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है, शार्पनर को बैग कहा जाता है। बच्चा किसे लिखता है? बॉक्स, पेंसिल, शार्पनर, बैग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शार्पनर। क्वेश्चन 72, Platinum is more costly than silver because is heavier, rarely found, whiter, harder. प्लेटिनम चांदी ज़्यादा महंगा है क्योंकि वह भारी होता है, कम पाया जाता है, सफ़ेद होता है, कठोर होता है। तो इसका सही उत्तर है rarely found, यानी कम पाया जाता है। क्वेश्चन 73, if the word tour is coded as 1 2 3 4, clear is 5 6 7 8 4 and sphere is 9 0 8 4 7, what is the fifth digit in the code of sculpture? A 3, B 4, C 6, D 0। यदि टूर शब्द को 1 2 3 4, क्लियर को 5 6 7 8 4 और स्पेयर को 9 0 8 4 7 के रूप में कोड किया जाए तो स्कल्पचर के कोड के पांचवा अंक क्या है? 3 4 6 0। तो इसका सही उत्तर है 0। क्वेश्चन 74, ए बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ. What would be the last two letters of the coded word for hero under the same system? PQ, MN, QP, NM। यदि बॉक्स को CDPQYZ के रूप में कोडित किया जाता है तो इसके प्रणाली, उसी प्रणाली के अनुसार हीरो के लिए कोडित शब्द के अंतिम दो अक्षर क्या होंगे? PQ, MN, QP, NM। तो इसका सही उत्तर है PQ। क्वेश्चन 75, in the following sequence which pair of number correctly fills the blank? B6 8D, J 14 17 M, N dash dash S। A 18 23, B 14 19, C 16 21, D 15 20। निम्नलिखित क्रम में संख्याओं कौन सा युग्म रिक्त स्थानों को सही ढंग से बढ़ता है? B6 8D, J 14 17 M, N dash dash S। A 18 23, B 14 19, C 16 21, D 15 20। तो इसका सही उत्तर है 18 23। क्वेश्चन 76, इन ए कोडेड सिस्टम वेयर डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट, व्हाट वुड फिश, वेयर वुड फिश लिव? डस्ट, फायर, कलर, वाटर। एक कोडित प्रणाली जहाँ
धूल को वायु, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाता। तो मछली कहाँ रहेगी? धूल, अग्नि, रंग, जल। तो इसका सही उत्तर है कलर। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ इज एम रिलेटेड टू जे स्टेटमेंट? फर्स्ट, K's father is brother of M. Second, J is daughter of L, wife of K. A, first alone is sufficient. B, two alone is sufficient. C, both required. D, neither sufficient. M J से किसके पास संबंधित है? पहला, K के पिता M के भाई हैं। सेकंड, J L की पुत्री है, J K की पत्नी है। A केवल एक पर्याप्त है, B केवल दो पर्याप्त है, दोनों आवश्यक है, कोई पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बोथ रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन सी। 78. The bus fare between two cities increases in the ratio 11:18. If the original fare was 550, what is the increase in fare? A 360, B 900, C 180, D 350. दो शहरों के बीच बस का किराया अगर रेशियो 18 के अनुपात में है पड़ता है, तो यदि मूल किराया 550 रुपया था तो किराया की कितनी वृद्धि हुई? 360 रुपया, 900 रुपया, 180 रुपया, 350 रुपया। तो इसका सही उत्तर है 350 रुपया, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड प्राइड बी अरेंज सच दैट ऑल वेवल्स एंड ऑल प्रेसिडेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर? A 12, B 24, C 18, D 36। सब प्राइड अक्षरों कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर और व्यंजन एक साथ समीकृत हो जाए? 12, 24, 18, 36। तो इसका सही उत्तर है 24। क्वेश्चन नंबर 80, S, T and U together can finish a work in 30 days if their efficiencies are in ratio 20, 15, 12. In how many days can U alone complete the work? A 195 by 2, B 215 by 2, C 225 by 2, D 235 by 2। S, T U मिलकर एक काम को 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो यदि उन कार्यकुशलता के अनुपात 20:15 है तो यू के अकेले उस काम कितने घंटे में पूरा कर सकता है? 195/2, बी 215/2, सी 225/2, डी 235/2। तो इसका सही उत्तर है 235/2। नीचे इससे है लास्ट वाला आपका एक राइट एन एसे वन ऑफ द ऐसे टॉपिक्स गिवन बिलो। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है, दूसरा वैक्सीनेशन पॉलिसी इन इंडिया है, थर्ड जेंडर इनक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स है, फोर्थ डेमोक्रेसी इन इंडिया है, 5 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मैंने एक पर ऐसे लिख दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ऐसे इस प्रकार है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इज प्रपोजल in India to replace personal laws based on religious scriptures and custom with a single set of secular civil laws governing marriage, divorce, inheritance, adoptions, and maintenance for all citizens. It is enshrined as a directive principle of state policy under Article 144 of the Indian Constitution, which urges the state to strive for a uniform code for all citizens. The UCC aims to ensure equality, justice, and secularism by eliminating gender discriminations present in personal laws based religions. For instance, different communities follow separate laws: Hindu Marriage Act, Muslim Personal Law, Christian Marriage Act, resulting in inconsistencies and equality. By adopting a uniform set of laws, India can promote national integration and provide equal rights to women, ensuring that Constitution guarantees of equality and non-discrimination under Article 14-15 are upheld. However, the implementation of UCC faces challenges. India is a diverse country with multiple religious languages and customs. Many communities fear that UCC might erode their culture, identity, and religious freedom guaranteed under Article 25. Thus, there is a need for a balanced approach that respects diversity while ensuring gender justice and equality. In conclusion, the Uniform Civil Code is an important step towards social reforms and equality. Its implementations should be gradual, inclusive, and sensitive to the concerns of all communities. Public awareness, dialogues, and consensus building are crucial to make UCC acceptable and effective. A well-drafted UCC can truly reflect the vision of a secular and progressive India, ensuring justice and uniformity in a personal law and for every. तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।